A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada ki ISKCON founder Acharya, Srila Prabhupada ki Nitya Lila Pravishta, Om Vishnupad, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnavinda ki Dharmacharya Srila Haridas Thakur ki Prem Shri Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda ki Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyamkund Radhakund Giri Govardhan ki Vrindavan Mayapur Dham ki Ganga Maye Yamuna Maye ki Josi Maharani Bhakti Devi ki Harinam Sankirtan ki Shri Gaur Purnima Mahotsava ki all glories assembled devotees, all glories assembled devotees, all glories assembled devotees, all glories Shri Guru, Shri Gauranga, all glories Srila Prabhupada. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Desatarine. So we welcome all of you to Mayapur Dham, all the way from Calcutta. You're very fortunate. From one holy dham to another holy dham, right? Calcutta is also holy dham, the birthplace of Srila Prabhupada. We having translation. हरे कृष्णा। तो महाराज ने कहा कि आप सबको मायापुर धाम में स्वागत है। तो आज हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आज महाराज यहाँ पर आए हैं और आज उनका आविर्भाव तिथि है। तो आज वसंत पंचमी है, बहुत सारे आचार्यों का आविर्भाव तिथि है, जैसे पुंडरीक विद्यानिधि, रघुनाथ दास गोस्वामी, और आज इतने विशेष दिन है कि आज महाराज का भी आविर्भाव तिथि है। तो महाराज के आविर्भाव तिथि के दिन, उनकी व्यास पूजा के दिन हमें महाराज का दिव्य सान्निध्य प्राप्त हो रहा है। तो अभी हम लोग छोटा सा महाराज का छोटा सा गुरु पूजा होगा और No. So, yeah, I'll put it in. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja
गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Jai Satchidananda, Jai Satchidananda, Jai Satchidananda, Jai Satchidananda, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Jai Satchidananda, Jai Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Srila Prabhupada. Gaur Premanande. हरे कृष्णा, श्री हरिनाम संकीर्तन की।
तो आज हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच में परम पूज्य भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह स्वामी महाराज कृपा करके यहाँ पर पधारे हैं। तो हमारे एनुअल कन्वेंशन का जो पहला मुख्य सेशन है तो महाराज देने वाले हैं। तो मैं महाराज का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूं। तो महाराज इस्कॉन के बहुत वरिष्ठ सन्यासी गुरु और श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। तो सौभाग्य से आज महाराज का आविर्भाव तिथि भी है। हरि बोल। तो महाराज 1971 साल में लंदन में यूरोप में कृष्ण भावनामृत आंदोलन में योगदान किए थे। तो उस समय महाराज कॉलेज स्टूडेंट थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे और उन्होंने प्रभुपाद जी की किताब को प्राप्त किए थे। कृष्ण बुक मिला था और कृष्ण बुक पढ़ के महाराज इतने आकर्षित हुए, वो कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रति आकर्षित हुए और फिर मंदिर गए और कुछ समय के बाद महाराज इस्कॉन में फुल टाइम ब्रह्मचारी के हिसाब से योगदान किए थे। और उस समय से आज तक कितना साल हो गया? 55 साल। हरि बोल। तो 55 साल से महाराज कृष्ण भक्ति कर रहे हैं और कृष्ण भक्ति का प्रचार पूरे विश्व भर में कर रहे हैं। तो महाराज अलग अलग प्रकार से सेवा किए हैं उस समय में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, हरिनाम संकीर्तन, अलग अलग प्रकार के प्रचार, लाइव मेंबरशिप डिपार्टमेंट और इस प्रकार अलग अलग इस्कॉन के जो अलग अलग सेवाएं हैं महाराज उसमें बहुत उत्साह के साथ योगदान किए थे। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि महाराज इस्कॉन कोलकाता मंदिर में भी बहुत साल रह चुके हैं। 1994 साल में 1994 महाराज श्रील प्रभुपाद के वाणी और मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से संन्यास दीक्षा लिए और तमाल कृष्ण महाराज को प्रभुपाद जी ने एक सेवा दिया था, वो है चाइना में प्रचार करना। तो आप लोगों को तो पता ही है चाइना कितना आगे है अलग अलग चीजों में। तो ऐसे जगह में प्रचार करना, विशेष करके चाइना, फिलीपींस, थाईलैंड, जहां पर कृष्ण भक्ति का प्रचार करना प्रैक्टिकली बैन किया गया है, तो वहां पर आप ओपन प्रीचिंग नहीं कर सकते और हर जगह में लाइफ थ्रेट है। तो ऐसे जगह में जाके जीवन के जो रिस्क लेकर प्रचार करना ये बहुत ही कठिन कार्य है। तो महाराज ये सब चीज के झुकी को लेते हुए महाप्रभु के वाणी को प्रचार करने के लिए, लोगों को उद्धार करने के लिए महाराज प्रचार करते हैं और ज्यादातर समय देखा गया महाराज अकेले ट्रैवल करते हैं, महाराज के साथ कोई सर्वेंट भी नहीं रहता है। तो मैं बहुत भाग्यशाली था कि महाराज का व्यक्तिगत सानिध्य प्राप्त हुआ है, उनका सेवा करने का भी मौका मिला है। तो मैंने बहुत बार देखा है महाराज खुद के कपड़े खुद ही धोते हैं और बहुत उम्र में भी महाराज सब कुछ खुद ही करते हैं, किसी को हेल्प जरूरत नहीं है। लेकिन हमें महाराज का हेल्प जरूरत है। तो महाराज इस उम्र में भी आप लोग देखते हैं, अगर नवद्वीप मंडल का परिक्रमा होता है जो इंटरनेशनल पार्टी है, इंटरनेशनल पार्टी का महाराज मेन लीडर हैं और 7 दिन महाराज पैदल चलते हैं। हरि बोल। और भक्तों के साथ वहां पर भी पैंडल में रुकते हैं। तो इस प्रकार महाराज हमेशा उनकी सरलता, उनकी विनम्रता, उनकी दया, उनकी तपस्या, उनके स्ट्रिक्ट साधना और महाराज सबको सम्मान करते। एक छोटा सा नया भी भक्त हो उनको भी सम्मान करते। इवन उनके जो डिसाइबल्स हैं, उनके शिष्य हैं, उनको भी सम्मान और प्रभु बोल के उनको संबोधित करते हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनके डिसाइबल्स को प्रभु बोलते थे, उसी प्रकार महाराज उनके जीवन से इतनी विनम्रता का उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जो मतलब समझना बहुत ही कठिन है। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि महाराज का दिव्य सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं हम लोग। महाराज मायापुर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन है, उसके एक बहुत प्रवीण फैकल्टी के रूप में अलग अलग इस्कॉन के जो कोर्स होता है, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत और भक्ति सार्वभौम, ऐसे अलग अलग कोर्स महाराज सिखाते हैं, पढ़ा रहे हैं बहुत समय से। और महाराज पूरे विश्व भर में भ्रमण करते हैं, जैसे यूरोप, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, मॉरिशस, मिडिल ईस्ट और विशेष करके इंडिया। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, महाराज कृपा करके उनके समय हम सबको दिए हैं। तो हम लोग महाराज का स्वागत करेंगे 3 बार। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
तो महाराज इंग्लिश में बोलेंगे और मैं हिंदी में अनुवाद करूंगा। और आज का विषय है प्रेयर्स ऑफ क्वीन कुंती। कुंती महारानी का जो प्रार्थना श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में दिया गया है, तो उसके ऊपर महाराज प्रवचन करेंगे। और आई रिक्वेस्ट महाराज कैन स्पीक समथिंग ऑल्सो लिटिल बिट along with the prayers, little bit about Bhakti रघुनाथ दास गोस्वामी at the end। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे सिस्टर नंदबू है यहाँ पर, तो महाराज को मान लेना। ओम नमो भगवते वसुदेवाय। ओम नमो भगवते वसुदेवाय। ओम नमो भगवते वसुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निस्तप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। So the prayers offered by Queen Kunti, they come in the 8th chapter in the first canto of the Srimad Bhagavatam. तो कुंती महारानी के जो प्रार्थनाएं हैं वो श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद के 8वां चैप्टर में अध्याय में आता है। At the beginning of the chapter, we hear about how Ashwatthama has thrown the Brahmastra weapon against the remaining child of the Pandavas. तो इस अध्याय के शुरू में हम लोग श्रवण करते हैं किस प्रकार अश्वत्थामा जो पांडवों का जो अंतिम जो वंश थे उनको उनके प्रति ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं। Ashwatthama wanted to finish all the Kurus. तो अश्वत्थामा सभी कुरुओं का वध या विनाश करना चाहते थे। He came in the night and he killed all the 5 sons of the Pandavas who were born from Draupadi. तो अश्वत्थामा रात्रि में आया और द्रौपदी के 5 पुत्र को हत्या की। And then after he was caught, then he threw the Brahmastra weapon and he wanted to kill the child who was in the womb of Abhimanu's wife, whose name was Uttara. तो जब अश्वत्थामा पकड़े गए तो तब अश्वत्थामा जो कौरव के जो अंतिम बीज था, वंशज था, उत्तरा के पुत्र जो है उनको हत्या करने के लिए प्रयास किए। Ashwatthama, Abhimanyu had been killed in the battle of Kurukshetra, but his wife Uttara had already conceived a child before the battle, so she was carrying the child in her womb. तो अभिमन्यु जिनका वध हो चुका था कुरुक्षेत्र के युद्ध में, तो उनकी पत्नी थी उत्तरा जो पहले से ही गर्भवती थी। So Ashwatthama wanted to kill that child. He thought, I don't want any of their descendants to remain. तो अश्वत्थामा वो गर्भ में जो संतान था उनका वध करना चाहते थे और वो चाहते थे कि कौरवों की या पांडवों की कोई वंशज जीवित ना रहे।
and he released, because his father was Drona. Drona had taught Ashwatthama about mantras, and he knew how to release it. He knew how to release the Brahmastra weapon. तो अश्वत्थामा द्रोण का पुत्र था और द्रोणाचार्य ने सिखाया था अश्वत्थामा को कि कैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ना पड़ता है. So he released it towards the womb of Uttara, and she saw the weapon coming, and she knew that what's happening, that this man, he wants to kill my baby. तो अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ा और उत्तरा ने देखा कि जो ब्रह्मास्त्र उनके गर्भ के दिशा में आ रहे हैं और वो बहुत भयभीत हो गए और वो सोच रहे थे कि ये जो व्यक्ति हैं अश्वत्थामा उनके पुत्र का वध करना चाहते हैं. So naturally she wanted to keep the child, and she came running to Krishna and she called out, Pahi Pahi Mahayogin Deva Deva Jagatpati. She's calling out to Krishna. She's saying that you're the only one who can save my child. तो तब उत्तरा जब ब्रह्मास्त्र को देखा कि उनके गर्भ के प्रति आ रहे हैं, तब उन्होंने दो हाथ उठा के भगवान श्री कृष्ण को पुकारा कि पाही पाही महायोगिन, हे कृष्ण केवल आप ही हमारे पुत्र को रक्षा कर सकते हैं. She said, please don't let this weapon kill my baby. It can kill, the weapon can kill me. I don't mind to die, but please save the child in the womb. In my womb. तो तब उत्तरा ने कही कि ब्रह्मास्त्र मेरे को हत्या करे, इसमें मेरा कोई दुख नहीं है, लेकिन कृपया मेरी संतान का रक्षा करिए. Yeah, there you can see the verse on the board. He's put the verse on here. It's the ninth verse of the 8th chapter. तो यहाँ पर वो श्लोक आप लोग देख सकते हैं जो उत्तरा वाचा जो उन्होंने कहा था. पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नायं त्वा अभयं पाहे यत्र मृत्यु परस्परम. Yatra mrityu parasparam. Yes. She does not want anything to happen to her child. तो उत्तरा नहीं चाहती थी कि कुछ भी उनके पुत्र के साथ हो. And she doesn't mind to give up her own life, but don't let anything happen to the baby. तो उत्तरा वो अपने लिए कुछ भी हो वो स्वीकार करने के लिए तैयार थी, लेकिन अपने पुत्र को वो रक्षा करना चाहती थी. And Lord Krishna hears her prayer. Now Lord Krishna, He is everywhere. He is also in the womb of Uttara. तो भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के साथ आदान प्रदान किया और भगवान श्री कृष्ण हर जगह में हैं और वो उत्तरा के गर्भ में भी है. Lord Krishna is Paramatma. So Paramatma is everywhere in every atom, and He's also in that womb. तो भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है और परमात्मा सर्वव्यापी है और वो उत्तरा के गर्भ में भी स्थित है. And Lord Krishna is always inclined to help His devotees. और भगवान श्री कृष्ण सर्वदा उनके भक्तों को रक्षा करने के लिए, सहायता करने के लिए तत्पर है. So he sees this young girl coming towards him, and he can understand what's happening. और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन किया जो उत्तरा उनके प्रति धावित होकर आ रही है और भगवान श्री कृष्ण उनको सहायता करते हैं. So Lord Krishna in the womb of Uttara, he spread himself everywhere, and he protected the child from the heat of the Brahmastra weapon. तो भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में उत्तर के गर्भ में प्रवेश किए और चारों ओर व्याप्त हो गए और जो ब्रह्मास्त्र का जो ताप था उससे जो संतान उनके गर्भ में थी उनको रक्षा किए. He did not let anything happen to the child. तो भगवान श्री कृष्ण संतान को कुछ ना हो उसके लिए सब कुछ किए. So that child got the name Vishnu Ratha. तो जो संतान उत्तर के गर्भ में था उनका नाम हुआ विष्णु रथा. One who is protected by Lord Vishnu. जिसका अर्थ है जिनको भगवान विष्णु ने
रक्षा किया। And he also got the name Parikshit. Parikshit means the examiner. तो और उनका और एक नाम है परीक्षित, जो सबको परीक्षा कर रहे हैं। Because while he was in the womb, the child saw he saw the Lord protecting him from the weapon of the Brahmastra. तो क्योंकि ये जो बच्चा जब गर्भ में था, शिशु, तब उन्होंने दर्शन किया कि भगवान गर्भ में उनको रक्षा किए। So after he saw the Lord, yeah, he was so attracted. The beauty of the Lord was so wonderful. He wanted to see the Lord again and again. So he was always looking, where is that personality that I saw who was in the womb? He saved me. Where is he? I want to see him again. तो जब गर्भ अवस्था में जब भगवान को दर्शन हुआ परीक्षित महाराज को, तो भगवान इतने सुंदर थे कि परीक्षित बार बार उनको दर्शन करना चाहते थे, बार बार उनको दर्शन करना चाहते थे। और इसलिए जब उनका जन्म हुआ, ढूंढ रहे थे कि कहाँ है वो भगवान, कहाँ है वो भगवान, बार बार उनका दर्शन करना चाहते थे। Just like when we go to temple and see Radha Madhava and Astasaki, then when we see the, oh, so beautiful, we want to see again and again. जिस प्रकार हम लोग मंदिर में जाते हैं, श्री राधा माधव का दर्शन करते हैं, और जब हम दर्शन करते तो ऐसा लगता है कि भगवान कितना सुंदर है, और फिर हम लोग बार बार उनका दर्शन करना चाहते हैं। And today, of course, being the very special day, the deities are very, very beautiful. तो आज बहुत विशेष दिन है, हाँ, तो आज का दर्शन बहुत अपूर्व और अद्भुत है। So we go and see the altar, everything yellow, right? All yellow dress, yellow flowers, everything. तो आप जब दर्शन करने के लिए जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे सब कुछ पीला है, हाँ? फूल और जो भगवान की पोशाक है सब कुछ, हाँ, पीला रंग से सजाया गया है। This is Vasant Panchami, क्योंकि आज वसंत पंचमी है, the very special festival day. तो बहुत ही विशेष उत्सव है। So it's very auspicious that you've all come here to Mayapur on this day. तो ये बहुत ही विशेष दिन है, विशेष दिन पर आप लोग मायापुर धाम पर आए हैं। And you can also go and see the beauty of the Lord, Radha Madhava. और आप लोग भी, हाँ, जा सकते हैं मंदिर में, हाँ, और राधा माधव का अपूर्व सौंदर्य का दर्शन कर सकते हैं। And they're with their Astasakis, Tungavijaya Chitra, Champakalata, Lalita, Vishaka, Induleka, Rangadevi and Sudevi. तो राधा माधव के साथ है उनके 8 सखियां, जिनका नाम महाराज ने बताया, हाँ, विशाखा, ललिता, तुंगविद्या, चित्रा। And especially we have the good fortune here in Mayapur Dham, we also have the manifestation of the Panchatattva. तो हम लोग और भी बहुत भाग्यशाली है मायापुर धाम में, जो लोग मायापुर धाम में रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें पंच तत्वों का भी दर्शन मिलता है। On Sunday we will celebrate the appearance day of Sri Advaita Acharya. तो आगे जो रविवार दिन है, वो रविवार दिन अद्वैत आचार्य प्रभु का आविर्भाव तिथि हम लोग मना रहे हैं। So very, very auspicious time that you've come to visit the Holy Dham. तो ये बहुत ही पवित्र समय है, जिस समय आप सब लोग मायापुर धाम में आकर उपस्थित हुए हैं। Right? Well, the Dham is the place where the Lord resides eternally. तो धाम वो स्थान है जहाँ पर भगवान शाश्वत रूप से नित्य काल निवास करते हैं। Right? Of course, not everybody is able to see him. हाँ, ये सत्य बात है कि ये सब लोग नहीं देख सकता है वो। The pure souls, the pure devotees, they can see the Lord. जो शुद्ध भक्त हैं, वही केवल वो समझ सकते हैं, देख सकते हैं। Lord Krishna says in the Bhagavad Gita, Naham prakashatarvatma yogamaya samavrata. Mudo yam navijanati lokamam hajamavyayam. The Lord said, I am never manifest to foolish and unintelligent. For them I am covered by my eternal creative potency, Yoga Maya. तो भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं कि जो मूढ़ है, वो मेरे को दर्शन नहीं कर पाता है, और मैं उनकी योग माया शक्ति के द्वारा अपने आप को आच्छादित कर रखता हूँ।
So we're all foolish and unintelligent. I'm the biggest fool. I'm the most unintelligent person. तो हम सभी लोग जो हैं हम लोग मूर्ख हैं और बुद्धिहीन हैं. And somehow I'm trying to speak to all of you, to encourage you to appreciate the wonderful glories of Srimati Kunti Devi. तो मैं आप सबको एक कुंती महारानी का जो प्रार्थना है ये मैं वर्णन करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ. Anyway, Kunti saw how the Lord protected Uttara's baby, and she was very much appreciating. तो कुंती महारानी ने साक्षात दर्शन किया इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उनका जो पुत्र है परीक्षित को रक्षा किए, और इसलिए कुंती महारानी बहुत हृदय से भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना और प्रशंसा करने लगे. Yeah, Kunti was thinking the Lord is so kind that He's saving us from so many dangers. तो कुंती माँ ने सोच रही थी कि भगवान कितने दयालु हैं कि वो हमें हर प्रकार के कठिनाई से हमें रक्षा कर रहे हैं. Kunti had been through a lot of calamities with her 5 sons. कुंती महारानी के जीवन में बहुत प्रकार के विपदाएं आए थे. उनके 5 पुत्र उनके साथ थे. जब Actually, Kunti was there were 2 co-wives. There was Kunti and Madri. They were both the wives of Pandu. तो कुंती महारानी जो है पांडु के पत्नी थी, और उनका और एक उनके साथ उनका माद्री को वाइफ उनके साथ में को वाइफ थी जो पांडु के 2 पत्नी थी, कुंती और माद्री. Pandu had the 2 wives. So what happened was Pandu had a curse against him, that if he ever became lusty after his wife, he would die. तो पांडु को एक शाप मिला था. तो वो शाप है कि वो अगर उनके पत्नी के प्रति काम भाव मतलब प्रकट होता है तो उनका मृत्यु हो जाएगा. So Pandu knew about that curse. So he moved all of his family. They all went to live in the countryside. He thought, if I live away from the palace, it will be very simple and peaceful, and I won't be overwhelmed by lust. तो पांडु क्या किए उनके महल को छोड़ के जंगल में चले गए, और वो सोच रहे थे कि मैं अगर अपने महल से दूर रहूंगा तो मैं काम वासना के द्वारा प्रभावित नहीं रहूंगा. इस प्रकार हमारी जीवन चलता रहेगा. But somehow it happened that Pandu was in this place, and it was very beautiful. There was a lot of flowers and nice smell, and then his wife Madri came, and he got attracted to her. And when he got attracted to her, then he died. तो जब इस प्रकार पांडु उस जंगल में निवास कर रहे थे, और वहां पर बहुत सुंदर वातावरण था, बहुत सुंदर सुगंधित वायु प्रवाहित हो रहा था, चारों ओर बहुत सुंदर खिला हुआ था, तो तब क्या हुआ, पांडु के हृदय में काम वासना प्रकट हो गया, और उस समय उनके पत्नी माद्री वहां पर प्रकट हुए, और उनके प्रति जब वो काम वासना से आकर्षित हुए, तब क्या हुआ, पांडु का मृत्यु हो गया. There's 5 young children. 2 were from Madri, right? Nakula and Sahadev were Madri's children, and Yudhisthira, Bhima and Arjun were born from Kunti. तो उनके 5 पुत्र थे. तो 2 नकुल और सहदेव माद्री का पुत्र था, और युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन कुंती का पुत्र था. And the 2 wives were bringing up the children, but now Pandu's dead. And when they did the burial, the cremation for Pandu at that time, Madri said, I should go with my husband. I should, because I was the one responsible for his death, that he became lusty towards me. So he's dead, it's my fault. I will go with him. I will enter into the fire, and I will go with him to the next life. तो जब पांडु का मृत्यु हुआ, तब उनके 5 पुत्र बहुत छोटे छोटे थे. तो जब उनके दाह संस्कार हो रहा था, तो माद्री ने कहा कि मैं मेरे पति के साथ सहमरण में जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे कारण पांडु का मृत्यु हुआ, क्योंकि मेरे कारण वो काम वासना के
काम वासना से प्रभावित हुए, इसलिए मैं उनके सहमरण में जाना चाहती हूँ। And Kunti has to bring up the 5 children all on her own with no husband. और इस प्रकार कुंती महारानी को 5 पुत्र का देखरेख करना पड़ा, जहाँ पर उनके पति जीवित नहीं थे। And of Dhritarashtra and his family, they're the uncle, they're their relatives. They're supposed to help. तो धृतराष्ट्र और उनके जो परिवार के लोग थे, वो लोग उनको सहायता करना चाहिए था। But they're the enemies. They're always competing with the Pandavas. They don't want the Pandavas around. तो लेकिन वो लोग उनके शत्रु के जैसा व्यवहार कर रहे थे, और वो लोग नहीं चाह रहे थे कि इनकी विकास हो। With Pandu dead, Dhritarashtra, although he's blind, he becomes the king. तो जब पांडु का मृत्यु हुआ तो धृतराष्ट्र जो अंधे थे लेकिन वो राजा बने। When Pandu died, his sons, the Pandavas, were all too young to become the king. They were just little children. They could not become the king. तो जब पांडु का मृत्यु हुआ तो पांडु के 5 पुत्र बहुत छोटे छोटे थे, इसलिए उनको राजा बनना संभव नहीं था उस समय। So Dhritarashtra became the king, and he wants his sons to become the king after him. तो इसलिए धृतराष्ट्र राजा बने, और वो चाहते थे कि उनके बाद उनके पुत्रगण ही राजा बने। He wants the whole kingdom to go to the Kurus, to go to his children. और इसलिए धृतराष्ट्र चाहता था कि ये जो राज्य है कुरु के पास चला जाए। Just like in the beginning of the Bhagavad Gita, the first verse of the Bhagavad Gita. जैसे शुरू में गीता के शुरू में भगवत गीता का पहला श्लोक में बताया गया है, Right? Dhritarashtra uvacha धृतराष्ट्र वाचा dhamma kshetre kurukshetre धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे samaveda yujutsava सामवेदा युजुत्सवा mamikam pandavaschaiva मामका पांडवस्यैव kurvanta sanjaya. किम कुर्वत संजया। Dhritarashtra begins the Bhagavad Gita. He says, what did my sons and the sons of Pandu do, being desirous to fight? तो भगवत गीता का शुरुआत होता है धृतराष्ट्र उवाच से, और यहाँ पर धृतराष्ट्र कहते हैं मेरे पुत्र और पांडु पुत्र युद्ध करने के लिए आकर वो क्या किए। So Dhritarashtra separated his sons from the sons of Pandu. तो इस प्रकार धृतराष्ट्र जो है अपने पुत्र और पांडु के पुत्र के बीच में भेदभाव किया। But the sons of Pandu, they're also Kurus. लेकिन पांडव के पुत्र जो थे, पांडु के पुत्र, वो लोग भी कौरव ही थे। But Dhritarashtra's thinking only his son. लेकिन धृतराष्ट्र केवल अपने पुत्र के बारे में सोच रहा था। Now he is the uncle of the Pandavas. He should be helping to take care of them. तो यहाँ पर धृतराष्ट्र पांडवों के चाचा थे, और उनका कर्तव्य था पांडवों को सहायता करना। But he's very hateful, he's spiteful. He doesn't want the Pandavas to get anything. लेकिन धृतराष्ट्र बहुत ईर्ष्यालु थे, और वो नहीं चाहते थे कि पांडव लोगों को राज्य प्राप्त हो। So they had a lot of trouble growing up. और इसलिए पांडवों को बड़े होने में बहुत कठिनाई हुआ। At one point, they all got sent to live in the house of shellac, a house made of shellac. तो ऐसा समय हुआ जब उनको लाक्षागृह में रहना पड़ा। So when they were living there, one night, people came and set it on fire. They wanted to burn the Pandavas along with Kunti. तो जब वो लोग उस लाक्षागृह में जो राख से बनाया हुआ था, जब वो वहां पर वो लोग निवास कर रहे, तो एक दिन क्या हुआ, आग लगा दिया गया कि पांडव और कुंती सबका मृत्यु हो जाए। But the Pandavas were aware. They were suspicious that this house, even a little spark, and the whole house will go up in flames. So it's very dangerous to live there. तो पांडव लोग पहले से ही वो थोड़ा सा विचार कर रहे थे कि ये जो घर है इसमें शायद थोड़ा सा आग लग जाएगा तो पूरा जल के भस्म हो जाएगा। So they were ready
that if there's any danger, they built a secret tunnel from which they could escape. तो इसलिए वो लोग तैयार थे कि कुछ भी अगर दुर्घटना घटेगा तो वो लोग वहां से भाग जाएगा, और इसलिए वो लोग एक नीचे से एक सुरंग पहले से ही बना के रखे थे। So it happened that one night there was an old lady came with 5 sons. Kunti's already living there with her 5 sons, and another old lady came with her 5 sons, and they wanted shelter for the night, so they let them stay in the house. तो ऐसा एक दिन हुआ कि एक वृद्धा स्त्री वहां पर आई उनके 5 पुत्रों के साथ, और वो लोग उस घर में रहना चाहते थे। तो तब कुंती, इस जो स्त्री है, वृद्धा स्त्री थी, और उनके 5 पुत्रों को वहां पर रहने के लिए उनको अनुमति दिए। But when they set the house on fire, this old lady with her 5 sons, they got trapped in the house and they died. तो जब लाक्षागृह में आग लगा दिया गया तो तब एक जो स्त्री थी, वृद्धा स्त्री, और उनके 5 पुत्र उस लाक्षागृह में जल के मर गए। The Pandavas, they escaped with Kunti, they escaped, but this old lady and her 5 sons, they died. And then the next morning when people came and found the ruins, they found the skeletons of 5 men and an old lady. They thought this was Kunti and her sons. They thought they were all dead. तो 5 पांडव और कुंती महारानी वो लोग उस सुरंग से वो लोग भाग गए थे, और जब आग बुझ गया तब सब लोग आकर देखा कि ये जो एक स्त्री और 5 लोग मरे हुए हैं। उन लोगों ने सोचा कि कुंती और 5 पांडव लोग मर गए। And at that time, the Pandavas and Kunti, they went into hiding, so nobody knew they were still alive, and the Kauravas thought they were dead. तो ये जो 5 पांडव लोग और कुंती महानेता, वो लोग छुप कर रहे थे, और किसी को पता नहीं था कि 5 पांडव लोग और कुंती महाने जीवित हैं। This is just some of the one thing which happened to the Pandavas, but so many other things happened. तो ये केवल एक घटना है जो पांडव और कुंतियों को हुआ था, लेकिन बहुत प्रकार की कठिनाई और विपद, संकट उनके जीवन में आया था। They knew Bhima likes to eat, so they gave him a special cake, and they filled it with poison that would kill him. तो कौरवों को पता था कि भीम खाने में बहुत पसंद करता है, तो इसलिए उन्होंने एक केक दिया था जिसमें जहर भरा हुआ था। So when Bhima got the cake, he thought, "Oh yeah, great," and he ate the whole thing. तो जब भीम को केक मिला तो बहुत खुश हो गया, बोला बहुत मजा है यार, इतना बड़ा केक मिला, और पूरा केक खा गया भीम। And the poison had made him unconscious. और उस विष खाने के कारण भीम अचेतन हो गया। So the Kauravas came and they saw Bhima on the ground unconscious. They thought he's dead, and they knocked his body into the pond, and they thought let his body stay there in the pond. तो जब सब लोग आया तो उन्होंने देखा भीम अचेतन होके पड़ा हुआ है, तो सबने सोचा कि भीम मर गया, तो उन लोगों ने भीम को पानी में बहा दिया। But in that pond there was a lot of fish, poison fish, and the poison fish, they bit him. And they neutralized all the poison from the cake. तो उस जो तालाब था, उस तालाब में बहुत सारे मछलियां थी, और जो मछलियां वो जहरीला था, और उन्होंने भीम के शरीर से सारा जहर खींच लिया, और जो जहर का जो क्या कहते हैं प्रभाव जो है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। Yeah, the 2 poisons, they worked against each other. So Bhima managed to he survived. He came back to conscious. तो ये जो 2 प्रकार के जहर था वो आपस में विक्रिया करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, और इस प्रकार भीम वापस जीवित हो गए। And so then of course they had the gambling match, the game of dice, and they lost all the kingdom. और आप लोग जानते हैं कि किस प्रकार वहां पर दूत क्रिया हुआ था, और वो लोग पाशा फैला हुआ था, और उसमें पांडव लोग हार गया था। And then they tried to disrobe the wife of the Pandavas. They gambled for Draupadi, and they won Draupadi, and they wanted to make her naked in front of all the men. और इस प्रकार वो दूत क्रिया में द्रौपदी को खोना पड़ा, और फिर आप लोग जानते हैं किस प्रकार द्रौपदी को विवस्त्र करने के लिए प्रयास किया गया।
And the Pandavas couldn't do anything to save her. But she took shelter of Lord Krishna. और उस समय पांडव लोग इतने शक्तिशाली होने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाए द्रौपदी की रक्षा करने के लिए, लेकिन द्रौपदी भगवान श्री हरि का शरण लिया। And Lord Krishna came as her sari and protected her. और भगवान श्री कृष्ण सारी प्रदान किए, सारी के रूप में आए और द्रौपदी का रक्षा किया। And then they had the battle of Kurukshetra. After so many years in exile, they came back. And then they said, we're Kshatriyas, we need some kingdom, you must give us some land. और इसके बाद कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। और कुरुक्षेत्र के युद्ध में 5 पांडव लोग, उनको वो 5 गांव चाह रहे थे, लेकिन उनको 5 गांव भी नहीं दिया गया। And the Kauravas told the Pandavas, we will not give you enough land to go through the eye of a needle. और कौरव लोगों ने कहा कि एक सूच के जैसे समान जमीन भी आप लोगों को नहीं मिलेगा। So then they say, okay, then we have to have war. तो तब वो पांडव लोगों ने कहा ठीक है, फिर युद्ध ही करना पड़ेगा। We have no choice, we have to go to war. तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो हमें युद्ध ही करना पड़ेगा। But Pandavas did not have a big army, they did not have many people to help them. लेकिन पांडवों के पास कोई सेना भी नहीं था, तो उनको बहुत कम संख्या में युद्ध करना पड़े। So they went to Lord Krishna, they wanted Lord Krishna, but Duryodhana also came, he also wanted Lord Krishna on his side. तो तब पांडव लोग भगवान श्री कृष्ण के पास गए सहायता मांगने के लिए, और वहां पर दुर्योधन भी आया था। So Lord Krishna said, well, I'm not going to fight. I can be the chariot driver for somebody, but I'm not going to fight. I will be on one side, and the other side they can have my army. तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, अगर आप हमें मेरा सहायता चाहते हो तो मैं ड्राइवर का काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप ड्राइवर के रूप में मेरे को ले सकते हो, नहीं तो मेरा नारायणी सेना है। अभी आपका विचार। And so Lord Duryodhana, he was happy. He thought, yeah, I want the army. And Arjun, he's happy also. He said, yeah, I want Krishna. तो दुर्योधन बहुत खुश हो गया और उन्हें कहा हाँ मेरे को आर्मी ही चाहिए, सेना ही चाहिए, नारायणी सेना। और अर्जुन सोचा हाँ हमें कृष्ण चाहिए। Even Lord Krishna won't fight, he'll be with me. I want him on my side. तो अर्जुन ने सोचा कि अगर भगवान श्री कृष्ण युद्ध ना भी करे फिर भी कोई असुविधा नहीं है, लेकिन कृष्ण हमारे साथ होना चाहिए। So they had the whole Kurukshetra war, and by the grace of Lord Krishna, the Pandavas came out victorious. तो इस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ और भगवान श्री कृष्ण के कृपा से पांडव लोग युद्ध में विजयी हुए। But at the end of the war, because Drona had been killed in the war, so Ashwatthama was very angry that they killed my father. He wants to get revenge. लेकिन युद्ध के अंत में जब द्रोणाचार्य का वध हो गया, तब ये अश्वत्थामा बहुत क्रोधित हो गया और वो पांडवों को हत्या करना चाहते थे। So he came in the night and he killed 5 sons who were all sons of the Pandavas from Draupadi. और अश्वत्थामा रात्रि में आया और वो पांडवों के सभी पुत्र को वध किया। वो सोचा कि पांडव लोग सोए हुए हैं। And then he comes after Uttara. He wants to kill the child in her womb. The child is not even born and he wants to kill it. और जब उत्तरा के समक्ष में आया तो वो उत्तरा के गर्भ में जो संतान था उसका भी हत्या करना चाहता था जिनका जन्म नहीं हो चुका था। But Lord Krishna comes to the rescue and he saves them in every situation. लेकिन भगवान श्री कृष्ण आते हैं और उनको भी रक्षा करते हैं। इस प्रकार कृष्ण पांडवों के हर परिस्थिति में उनको सहायता की, रक्षा किए। And then Lord Krishna, he thinks, okay, now everything's over. Now I want to go to Dwarka. I have my family all there in Dwarka. I want to go home. तो तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, अभी सब कुछ ठीक ठाक हो गया, अभी मैं द्वारका वापस जाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पर मेरे परिवार, मेरे पत्नियां मेरे लिए अपेक्षा कर रहे हैं। He has his family, he has his wives there, and all the children, and all the
members of the Yadu dynasty. They're all there in Dwarka, and they're always great devotees, and they're feeling separation from Lord Krishna. तो द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के पत्नियां, उनके पुत्र, उनके परिवार, सभी लोग अपेक्षा कर रहे थे और वो भगवान श्री कृष्ण के विरह अनुभव कर रहे थे, क्योंकि कृष्ण बहुत समय से द्वारका के बाहर थे। And Lord Krishna is getting on his chariot and he's about to go. और भगवान श्री कृष्ण अभी प्रस्थान करने वाले हैं हस्तिनापुर से द्वारका। But then Queen Kunti comes forward. और उसी समय कुंती महारानी आती हैं। With the Pandavas, they all come and they plead to Lord Krishna. पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करने के लिए। They don't want Lord Krishna to go. They want Lord Krishna to stay and be with them. और लोग नहीं चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से चले जाए द्वारका। वो लोग चाहते थे कि कृष्ण हस्तिनापुर में ही रहे। This is the way of pure devotees. They want Krishna. They long for Krishna's association. तो ये है शुद्ध भक्त की चेतना, शुद्ध भक्त के हृदय। वो कभी नहीं चाहते हैं कि कृष्ण उनसे दूर चले जाए। Right. Devotees, we're always thinking, where is Krishna? When will he come? तो भक्त लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं कि कहाँ पर कृष्ण है, कहाँ पर कृष्ण है, कब कृष्ण आएंगे, कब कृष्ण को प्राप्त होगा, कब कृष्ण का दर्शन मिलेगा। Chaitanya Mahaprabhu appeared here in the Mayapur land, and he taught us all to worship Krishna in the mood of the gopis. श्री चैतन्य महाप्रभु इस नवद्वीप धाम मायापुर धाम में प्रकट हुए और वो भी कृष्ण भक्ति शिक्षा दे रहे हैं गोपियों के भाव से। Right? The mood of the gopis was Vipralamba Seva. They will serve the gopis and they will serve Krishna in separation. तो गोपियों का भाव भी इस प्रकार का है, विप्रलंब भाव, विरह भाव से कृष्ण की सेवा करना। And these gopis are recognized by Chaitanya Mahaprabhu as being the greatest devotees of Krishna. और ये जो गोपियां हैं जो विप्रलंब भाव में कृष्ण की सेवा करती हैं, ये चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ये अनुमोदित हुए। Nowadays, of course, recently we had the big temple opening in Ayodhya, and the worship of Lord Ramachandra is very popular. तो कुछ दिन पहले आप लोग जानते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। Right, Ramachandra Bhagwan ki. You see, you're all devotees, Ram Bhaktas. तो आप सभी लोग रामचंद्र के भक्त हैं, रामचंद्र को जानते हैं। But actually, Krishna is more sweeter than Lord Ram. ये बहुत अच्छा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण रामचंद्र से भी मधुर है। And Queen Kunti knows that. She knows that. She appreciates that Krishna is more sweet than any of his other incarnations. और कुंती महारानी ये जानती है और इसलिए कुंती महारानी कृष्ण की प्रशंसा, कृष्ण से प्रार्थना कर रही है। Kunti knows that Lord Krishna is her nephew. Kunti is her brother is Vasudev, and Vasudev's wife is Devaki, and they were able to have Lord Krishna as their child. And Kunti knows that Krishna is the supreme Bhagwan, Swayam Bhagavan, the personality of God. तो कुंती महारानी जानती थी कि कृष्ण जो है वसुदेव के पुत्र हैं, उनके भाई का बेटा, लेकिन फिर भी कुंती महारानी को पता था कि कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कृष्ण स्वयं भगवान है। Lord Ramachandra, he is always the king, the son of the king, or the king is the ruler, so that you have to be you have to keep your distance from him. तो भगवान श्री रामचंद्र वो अयोध्या के राजा हैं और सभी लोग, सब कोई राजा जो है उनको सम्मान करना पड़ता है, उनसे संभ्रम एक डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। Hanumanji was a great bhakta. He did great service for Lord Rama, but he's always kneeling at the feet of Lord Ram, waiting to get some service. तो हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र के महान भक्त हैं, लेकिन वो हमेशा रामचंद्र के चरणों में निवास करते हैं और हमेशा सेवा की प्रार्थना करते हैं।
one time Lord Rama embraced Hanuman. एक बार हनुमान जी को रामचंद्र ने आलिंगन किया था। Hanuman is always thinking, when will the Lord embrace me again? हनुमान जी चिंता कर रहे हैं कब वो दिन आएगा कि भगवान श्री रामचंद्र हमें आलिंगन करेंगे। It never happened. और ये भविष्य में हुआ नहीं। But Lord Krishna, he's enjoying with his friends, the Gopas and the Gopis. लेकिन भगवान श्री कृष्ण वो हमेशा उनके सखाओं के साथ, गोपियों के साथ हमेशा उनके साथ भ्रमण करते हैं। The Gopas are fighting with Krishna and they're riding on his back and they're playing many different games with Krishna. तो जो गोप सखागण है वो कृष्ण के कांध पे चढ़ जाते हैं और वो लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं और एक साथ घूमते हैं, नाचते हैं। And the gopis, they're dancing with Krishna, they're enjoying the embraces of Krishna. और दूसरे ओर गोपियां कृष्ण के साथ नाचती हैं और कृष्ण के जो दिव्य आलिंगन है उनका आनंद लेती हैं। So the Lord Krishna is more sweet than any other form of the Lord. इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सबसे मधुर हैं उनके बाकी सभी अवतारों से। Lord Nrsingadev, okay, very nice, but Lord Nrsingadev, very powerful, but you have to be you have to be very respectful in front of Lord Nrsingadev. आप सबको पता है कि भगवान नरसिंहदेव भगवान प्रकट हुए थे, बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम लोग भगवान नरसिंहदेव के सामने जाते हैं तो हम लोग बहुत भयभीत रहते हैं। भगवान नरसिंहदेव हाथ जोड़ करके हम लोग भयभीत होकर प्रार्थना करते हैं। And here in Mayapur we have Ugra Nrsinga. He's very powerful Nrsinga. He's angry. और यहाँ पर जो नरसिंह भगवान है मायापुर में ये है उग्र नरसिंह, जो बहुत उग्र रूप में, बहुत क्रोधित रूप में प्रकट हुए हैं। He just killed Hiranyakashipu. और उनका जो भाव है, उनका जो रूप है कि केवल हिरण्यकशिपु को अभी वध किए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। So even the devas, the demigods, when they come before the Lord, they don't know what to say. They can't even Lakshmi, his own consort, she could not pacify him. तो देवतागण भी उनका सामना नहीं कर पा रहे थे और लक्ष्मी देवी वो भी भगवान नरसिंहदेव को उनको शांत नहीं कर पा रहे, उनके क्रोध प्रशमित नहीं कर पा रहे थी। But Lord Krishna is not like that. Lord Krishna is very, very sweet. लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बहुत 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 मीठा है। So Queen Kunti, she appreciated the good fortune of Vasudeva and Devaki, how they were so fortunate to have the Lord as their child. तो कुंती महारानी देवकी और वसुदेव के सौभाग्य का प्रशंसा कर रही थी और इस प्रकार उनको भगवान श्री कृष्ण को पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ। There's a beautiful verse Queen Kunti sings. You can all chant with me. तो एक बहुत ही विशेष, बहुत सुंदर प्रार्थना है जो कुंती महारानी इस अध्याय में कह रही है। Krishnaya Vasudevaya, कृष्णाया वासुदेवाया, Devaki Nandanaya cha, देवकी नंदनाय च, Nanda Gopa Komoraya, नंदगोपा कुमाराय, Govindaya Namo Namaha, गोविंदाय नमो नमः, Krishnaya Vasudevaya, कृष्णाय वासुदेवाय, Devaki Nandanaya cha, देवकी नंदनाय च, Nanda Gopa Komoraya, नंदगोपा कुमाराय, Govindaya Namo Namaha, गोविंदाय नमो नमः, Krishnaya Vasudevaya, कृष्णाय वासुदेवाय, Devaki Nandanaya cha, देवकी नंदनाय च, Nanda Gopa Komoraya, नंदगोपा कुमाराय, Govindaya Namo Namaha. गोविंदाय नमो नमः। In this way, Lord Krishna is remembering all the different family members.
तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण को उनके परिवार के सभी लोग स्मरण कर रहे थे। Right? Krishna is the son of Vasudeva, so Krishnaya Vasudevaya. तो कृष्ण जो है वसुदेव के पुत्र हैं, कृष्णाय वासुदेवाय। And then Devaki Nandanaya cha. Devaki is also a name of Mother Yashoda. Mother Yashoda has two names. Sometimes she's called Yashoda, sometimes she's also called Devaki. तो देवकी के पुत्र हैं, तो जशोदा मैया का दो नाम था। देवकी का अर्थ जशोदा भी है। So Devaki Nandanaya cha. Nanda Gopa Komaraya. Nanda Maharaj and Gopa, the cowherd boys, and Komara, the young boys. तो नंद गोप कुमार आया, तो नंद महाराज नंद गोप के कुमार है, पुत्र है। Govindaya Namo Namah. So Krishna is the cows and the brahmanas. He's showing everyone we should respect these. Very important. तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण और गाभियों को रक्षा करते हैं और बताते हैं किस प्रकार ब्राह्मण और गाभियों को रक्षा करना, सम्मान प्रदान करना बहुत महत्वपूर्ण है। Lord Krishna, as soon as he appeared in Mathura, he went to Vrindavan because he wants to enjoy the life in Vrindavan. As soon as Krishna took birth in Mathura, right after his birth, he wanted to go to Vrindavan. तो जब भी भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ मथुरा में, तो आविर्भाव होने के बाद ही तुरंत वो वृंदावन जाना चाह रहे थे, क्योंकि वो वृंदावन के जो आनंद है वो आस्वादन करना चाह रहे थे। He wants to enjoy the beauty of the 12 forests of Vrindavan and to be with all the cows and the cowherd boys, the cowherd people. तो भगवान श्री कृष्ण वृंदावन का जो जीवन है, वृंदावन का जो बारावन है, उसके सौंदर्य, उसका आनंद लेना चाह रहे थे और वहाँ पर गोपी और गोपास का जो संग है उसको आस्वादन करना चाह रहे थे। So Lord Krishna, he's showing us the importance of these two things, the cows and the brahmanas. तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो गाभी और ब्राह्मणों के प्रति जो बहुत महत्व वो यहाँ पर सिखा रहे हैं। Nanda Maharaj had a big herd of cows, 9 lakh cows. तो नंद महाराज के पास बहुत सारा गाय थी, 9 लाख। And nowadays, you have 1,000 cows, we think, oh, so great. Oh, Nanda Maharaj had 9 lakh. तो अभी के जमाने में अगर किसी के पास 1000 गाय रहता है तो बोलते हैं हाँ मेरे पास बहुत सारा गाय है, लेकिन नंद महाराज के पास 9 लाख। And they were not poor. They were giving so much milk. और ये सारा गाय जो है ये बहुत मतलब क्या कहते हैं, दुबले पतले नहीं थे, वो बहुत दूध प्रदान करती थी। And from the milk they were making ghee and yogurt and cheese, so many things. और उस दूध से घी, मक्खन और अलग अलग प्रकार के जो दुग्ध द्रव्य वो उत्पादन होता था। And this way people in the cowherd villages, they're very healthy. They're drinking milk every day. और इस प्रकार जो गोप जाति थे वो लोग बहुत ही हृष्ट पुष्ट थे, क्योंकि वो लोग हर दिन दूध पीते थे। Nowadays people they have no idea what is real cow's milk. आज के जमाने में लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है कि असली दूध क्या होता है। Go to the supermarket and they purchase some imported milk. It's not the real thing. और वो लोग सुपरमार्केट में जाते हैं और वो कहाँ से पैकेट का दूध खरीद के लाते हैं। Often it's something made up from milk powder. They put some water there and tell you this is milk. और वो लोग क्या करते हैं, पाउडर में पानी मिला देते हैं और बोलते हैं ये लो दूध। No, the real milk, the real value in the Vedic culture, you keep the cows and you get nice fresh milk and everybody can drink some milk and be healthy. तो लेकिन वैदिक सभ्यता में गायों की देखरेख किया जाता था और गाय प्रचुर मात्रा में दूध प्रदान करती थी और दूध
सब लोगों को प्राप्त होता था। Nowadays they have a thing, they call it vegan. And the vegan people say, no, we shouldn't drink any milk, it's very wrong. तो आज के जमाने में कुछ प्रकार विशेष कुछ प्रकार के लोग घूम रहे हैं जिनको वेगन कहते हैं, जो लोग बोलते नहीं हमें दूध भी नहीं पीना चाहिए। We say, well, it's wrong to abuse the cows, but if you take care of the cows, it's not wrong to drink the milk. तो ऐसे कहा जाता है कि गायों को हमें कष्ट देना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप गाय की सेवा करते हैं तो गाय का दूध आप पी सकते हैं। Now, this planet belongs to the cows. The deity of this planet is Mother Bhumi, and she's in the form of a cow. तो ये जो पृथ्वी है, ये धरित्री, ये गौ माता है। ये पृथ्वी का और एक रूप है जो गौ माता का रूप है। We have to take care of the cows, not abuse them, protect them. तो हमें गौ माता की सेवा करना चाहिए, उनको कष्ट देना नहीं चाहिए। And when we protect the cows nicely, they'll give nice milk. तो जब हम लोग गौ माता की देखरेख करेंगे, सेवा करेंगे, तब गौ माता प्रचुर परिमाण में दूध प्रदान करेगी। And just by drinking milk, you can prolong your life. और केवल दूध पीने के द्वारा ही आप अपने आयु को बढ़ा सकते हैं। Srila Prabhupada told us, he said, just by drinking milk, you can get pious activity. श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, केवल दूध पीने के द्वारा ही आपका पुण्य बढ़ सकता है। But when we say milk, we mean cow's milk, not goat's milk. तो जब हम लोग दूध के बारे में बता रहे हैं, दूध बोल रहे हैं, तो वो अवश्य ही गो दुग्ध होना चाहिए, वो बकरी का दूध नहीं, Not buffalo milk, न कि वो भैंस का दूध, not camel's milk. वो ऊंट का दूध नहीं। People drink these things. The real milk is from mother cow. आज के जमाने में लोग ये सब पी रहे हैं, लेकिन असली दूध जो है वो है गौ माता से आता है। And Krishna loves the cows. He loves to take it to be with the cows. और कृष्ण वो गौ माता को पसंद करते हैं और गौ माता के साथ रहना चाहते हैं। So we are trying to encourage people in this culture, the Vedic culture. तो हम लोग सबको इस दिशा में सबको प्रेरणा देना चाह रहे थे। इस वैदिक संस्कृति जो है, गो रक्षा, गो सेवा, We're teaching people the value of cows and keeping cows and taking care of cows. तो ये वैदिक सभ्यता का एक वैल्यू है, एक नीति है कि गौ माता की देखरेख करना, गौ माता की रक्षा करना, सेवा करना। Not only are we're doing it ourselves, we're preaching about it, and we're showing by our own example. We're taking care of the cows. We're keeping nice dairy farms, goshalas. तो हम लोग केवल एक प्रचार ही नहीं कर रहे हैं, वास्तविक रूप से हम लोग इस्कॉन में गौशाला का निर्माण किए हैं, और जहाँ पर हम लोग गौ सेवा, गौ रक्षा, गौ पालन हम लोग करते हैं। So this is our Krishna conscious movement. We have to preach. We have to educate people about these things. तो ये हमारे कृष्ण भावना का आंदोलन है, जहाँ पर हमें लोगों को शिक्षित करना पड़ता है, लोगों को शिक्षा देना पड़ता है, किस प्रकार जीवन निर्वाह करें। People living in the city, they don't know. They think milk is something like Coca-Cola. You get it from the factory. तो शहर में लोग रहते हैं और उनको दूध कैसे बनता है उसके बारे में कोई धारणा नहीं है। वो लोग सोचते हैं कि दूध जो ऐसे कोका कोला के जैसा फैक्ट्री में बनता है। They don't know about the real importance of keeping the cow and protecting the cow, our own mother. तो उनको पता नहीं है कैसे हमें घर में गाय रखना चाहिए, गो सेवा करना चाहिए। ये हमारा एक धर्म है, वो हमारी माता है। So Queen Kunti, she knew about all these things. लेकिन कुंती महारानी को इस सब के बारे में जानकारी थी। The Pandavas also, they know. और पांडवों को इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान था। They lived, they showed the example. और वो इस प्रकार जीवन निर्वाह करते थे और अपने जीवन से वो हम सबको सिखा रहे हैं। Okay, you will ask any questions? बहुत अच्छा, तो किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Any question, comment? Yes, Prabhu? ओके, प्रश्न पहले अशेषानंद गुरु।
Krishna Maharaj. Thank you so much for the wonderful. Hare Krishna Maharaj. Thank you so much for the wonderful class. Maharaj, like you were saying, how Krishna shows by his example the importance of cows. So sometimes in Shastra we hear terms like go khara. They are comparing people who have like less intelligence, just going to the pilgrimage places and taking bath. So they are just like doing some. They are being compared to go khara. So how do we interpret this? How do we understand this? तो इनका प्रश्न है कि हम लोग देखते हैं कि बहुत बार शास्त्र में किसी का अगर निंदा किया गया है तो उनको गो खरा के रूप में बताया गया। गो मतलब गाय। तो इसका मतलब है कि गाय मतलब इसका मतलब गाय कुछ खराब चीज है क्या, इसलिए गाय के रूप में बताकर उनको निंदा किया गया है। तो इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर गौ माता की प्रशंसा किया जा रहा है और वो अगर किसी को निंदा किया गया है तो वहां पर बोला है तो गाय है। So Prabhu is referring, there's a sloka like that people who think the body is made up of 3 elements and they go to a holy place just to take bath and they think the land of their birth is worshipable. They're compared to a stupid animal like a cow or an ass. तो प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं कि भागवत में जिस प्रकार कहा गया है कि जो व्यक्ति 3 धातु से बना हुआ शरीर को आत्मबुद्धि करते हैं और किसी आध्यात्मिक स्थान में जाकर उधर स्नान करके आ जाते हैं, हरि कथा नहीं सुनते हैं साधुओं से, तो वो गाय के समान है। So we have to understand the animals are different from humans. तो हमें समझना पड़ेगा कि जो पशु है वो मनुष्य से अलग है। Human beings have intelligence. मनुष्य को ऊंचा बुद्धि है, मिला है। Intelligence is meant for inquiry into the absolute truth. तो बुद्धि इसलिए दिया गया है कि परम ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करे। We're meant to ask, who am I? Why am I here? Where am I going? Why am I suffering? तो हमें जिज्ञासा करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों दुख भोग रहा हूँ इस संसार में अलग अलग। Human life is meant to use their intelligence for that, to inquiring and understanding. Animals cannot do that. They don't have that kind of intelligence. तो मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि हम लोग आध्यात्मिक जीवन के बारे में, परम ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करें। The animals only know eating and sleeping, mating and defending. तो पशु ये जिज्ञासा नहीं कर सकता। पशु केवल आहार, निद्रा, भय और मैथुन क्रिया करते हैं। But animals, they have that's their intelligence. It doesn't go any further than just eating and sleeping. They don't have that opportunity. Their body is not meant for inquiring into the absolute truth. तो पशु का जो शरीर है उसी प्रकार बना है कि वो इसके आगे वो जिज्ञासा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उनकी बुद्धि केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन तक सीमित है। So when we say that people were like a stupid animal, like a cow or an ass, we're talking about their intelligence level. तो जब हम लोग किसी व्यक्ति को पशु के जैसा संबोधित करते हैं, इसका मतलब है हम उनको उनकी बुद्धि को पशु के जैसा संबोधित कर रहे हैं। Now, even though they're not intelligent, still we protect them, we take care of them. तो हालांकि वो लोग कम बुद्धिमान है पशु, फिर भी हम लोग उनको रक्षा करते हैं। Because they're very important for the whole planet. क्योंकि वो सब बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरे पृथ्वी के लिए। The planet actually belongs to the cows. क्योंकि ये जो पृथ्वी है ये एक गायों का संपत्ति है। And they need us to take care of them, and we need the cows. तो गाय को हमें जरूरत है उनकी रक्षा के लिए, और हम लोगों को गाय का जरूरत है हमारे समृद्धि के लिए। If we don't have cows, you won't have any ghee. If you don't have any ghee, you cannot do any yajna. तो अगर आपके पास गाय नहीं है तो घी नहीं मिलेगा, अगर घी नहीं रहेगा तो यज्ञ अनुष्ठान नहीं होगा। So the contribution of the cows is very, very special. और इसलिए जो गायों की जो अवदान है इस सृष्टि के लिए, हमारे जीवन के लिए, वो उसका कोई तुलना नहीं है। And you can see even here in Mayapur we have
shops, they're selling different products which are produced from the cow, from the urine of the cow, which is very medicinal, and made from the cow dung, and there's so many different things which are from the cow, which are very useful for us. तो आप लोग देख सकते हैं मायापुर धाम में यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो गो प्रोडक्ट काउ प्रोडक्ट यहाँ पर सेल किया जा रहा है। घी और अलग अलग प्रकार के काउ डंग से बना हुआ है, अलग अलग प्रकार के मेडिसिन। तो बहुत प्रकार के लाभ हमें गौ माता से मिलता है। You can make soap, you can get toothpaste, all made from cow products. तो आप लोगों को टूथपेस्ट, आपको साबुन, अलग अलग प्रकार सब काउ डंग से या गोद्रव्य से प्राप्त होता है। So we definitely take care of the cows and we protect them, and we have also go puja. We offer the puja to the cows, but at the same time we understand they have limited intelligence. तो इस प्रकार गायों का बहुत जरूरत है और हमें गो पूजा करने का भी एक बहुत विशेष मौका मिलता है। और इसके साथ साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि उनके जो बुद्धि है वो कम है। You cannot expect the cow to ask, who am I? Why am I suffering? तो आप गायों को ये आशा नहीं कर सकते कि वो जिज्ञासा करेगी कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों दुख भोग रहा हूँ मनुष्य के जैसा। The cow will just say, give me some hay, give me something to eat, give me some water to drink. तो गाय शायद ऐसा बोलेगी है कि हमें कुछ घास दीजिए खाने के लिए, कहाँ है घास, हमें पानी दीजिए, हमें पानी पीना है। समझ में? ओके। Any other question? Yes, Dr. Gu? Yeah. Hare Krishna Maharaj, please accept my humble obeisances. Maharaj, my question is that Chaitanya Mahaprabhu is saying in Shiksha Ashtakam that Na dhanam, na janam, na sundaram, kavitam va jagadisha kamaya. So is Mahaprabhu referring to not accepting wealth, not accepting a woman, or not accepting association with the world? Not accepting. Mahaprabhu is saying na janam, na dhanam, na sundaram. What was the last thing you said? Kavitam va jagadisha kamaya. So I want to know that association of worldly people. Mahaprabhu is saying avoid these things if you want to progress in devotion. Hare Krishna. Okay, in Lord Chaitanya's Shikshastikam, he says I have no desire to accumulate wealth or to enjoy beautiful women or have many followers or to be praised by transcendental songs. I only want devotional service, birth after birth. तो श्री चैतन्य महाप्रभु उनके प्रार्थना में कह रहे हैं कि हमें धन संग्रह करने की इच्छा नहीं है और हमें सुंदरी स्त्री का संग नहीं चाहिए और हमें भौतिक अनुयायी हमें नहीं चाहिए। केवल हमें आपके चरणों में जन्म जन्मों तक अहेतु की भक्ति चाहिए। So Lord Chaitanya he's not interested in becoming a rich man. You know, people often in the material world, their only thought is make money. तो श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा नहीं है कि बहुत धनी व्यक्ति बने। इस दुनिया में आज ज्यादातर लोग बहुत धन कमाने के लिए उनको जीवन निर्वाह करते हैं। Lord Chaitanya is a sannyasi. He's not interested in money. श्री चैतन्य महाप्रभु एक जन सन्यासी है और वो इस धन संग्रह करने के प्रति आकर्षित नहीं है। But if he gets some money, he'll use it for Krishna's service. लेकिन अगर आपको धन है तो आप उसको कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। Right? If Prabhupada got some money, he would use it to print books. जैसे प्रभुपाद को अगर धन मिलता था तो वो धन वो किताब छपने के लिए व्यवहार करते थे।
We had no money in the beginning. Prabhupada went to America with no money. तो हमारे इस आंदोलन में शुरू में हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं था। प्रभुपाद अमेरिका में गए थे खाली हाथ। He didn't worry about money. लेकिन प्रभुपाद धन के बारे में बहुत चिंतित नहीं थे। That's not the goal of Krishna conscious devotee. तो वो एक आध्यात्मवादी व्यक्ति का वो उनके जीवन का लक्ष्य नहीं है। And he didn't worry about having a lot of followers either. और प्रभुपाद जी अनुयायी के लिए भी बहुत चिंतित नहीं थे। He just wanted devotional service. प्रभुपाद केवल उनके गुरु का सेवा करना चाहते थे। So Chaitanya Mahaprabhu, he's praying, he said, I just want devotional service. He's not even asking for liberation. तो श्री चैतन्य महाप्रभु केवल भगवान की भक्ति प्रार्थना किए हैं और वो मुक्ति भी नहीं चाहते थे। Material world people, they want to get money, they want to, and then after they try to enjoy the material world, then they want mukti. तो भौतिक जगत में लोग धन की कामना करते हैं और फिर धन अपने इंद्रिय भोग के लिए व्यवहार करते हैं और फिर इंद्रिय तृप्ति हो जाता है तब वो मुक्ति चाहते हैं। Mahaprabhu is teaching us the mood of the pure devotee, that he only wants devotional service, birth after birth. तो महाप्रभु का जो भाव है, महाप्रभु के जो मूड है, वो केवल भक्ति चाहते हैं जन्मों जन्मों तक। People often say, oh, I don't want to come back to this world. I want to go out. I want to get more liberation. तो कुछ लोग हैं, हाँ, जो इस दुनिया में रहना नहीं चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि इस दुनिया से बाहर से मुक्त हो जाए। But Mahaprabhu said, I just want devotional service. महाप्रभु की शिक्षा है, केवल मैं भक्ति करना चाहता हूँ, किसी भी स्थिति में हो। I'm not worried about money or followers or being famous or anything. तो महाप्रभु उसके बारे में चिंतित नहीं थे कि हमें कितना धन मिलेगा, हमें कितना अनुयायी मिलेगा और हमें क्या भोग ऐश्वर्य मिलेगा। Devotee has no material desire. तो जो शुद्ध भक्त हैं उनको कोई भौतिक इच्छा नहीं है। Right? Rupa Goswami describes pure devotional service. रूप गोस्वामी शुद्ध भक्ति के बारे में वर्णन करते हैं। Anyabilasita sunyam jnana karma janavritam anukuyena krishnanushilanam bhaktir uttamam. That the highest devotion is that devotion which is without any desire for further activity or philosophical speculation. तो जो शुद्ध भक्ति है वो अन्याभिलाषिता शून्यम और भुक्ति और मुक्ति के जो इच्छा है, जो मानसिक जो जल्पना है, कल्पना है, उससे परे है। Here you can see on the board. तो यहाँ पर बोर्ड में उस श्लोक को दिया गया है। Rupa Goswami give nice definition. रूप गोस्वामी पर बहुत सुंदर भक्ति के जो डेफिनेशन है, संज्ञा है, वो दिए हैं। Anukuyena krishnanushilanam bhaktir uttamam. Right? You can all chant. Anyabilasita sunyam. अन्याभिलाषिता शून्यम Jnana karma janavritam. Anukuyena krishnanu. अनुकूलेन कृष्णानु Shilanam. शीलनम Bhaktir uttamam. भक्तिरुत्तमम्। Yeah, right? The highest devotion, bhakti uttama. Make no material desire for jnana or karma. तो ये शुद्ध भक्ति है, ये ज्ञान और कर्म से परे है। And you want to serve Krishna all the time. Anyabilasita, all the time, uninterrupted service. और आप कृष्ण की सेवा हमेशा करना चाहते हो, जिसका कभी भी रुकावट नहीं होगा। Right? 24/7, every day, every hour, every moment in Krishna's service. जैसे 24 घंटा दिन रात आप कृष्ण की सेवा में जुड़े हुए हो, No days off. कोई भी दिन छुट्टी नहीं है, 24/7। हरि बोल। Right? Come to Mayapur. मायापुर आइए, एकदम हर दिन कृष्ण Come सेवा। here to do seva.
यहाँ पर आइए और सेवा करिए। So, we worship Krishna, but we can worship Krishna and everything in relation to Krishna. तो हम लोग इस प्रकार कृष्ण की सेवा करते हैं और कृष्ण के साथ जो भी जुड़ा हुआ है, हाँ, उनको भी सेवा करते हैं। You may be Ram Bhakta, you may be Nrsimha Bhakta, whatever. तो आप शायद कृष्ण के भक्त हैं, आप शायद राम और निशिंग के भक्त हो सकते हैं। We can worship all the different forms of the Lord. तो हम लोग कृष्ण के अलग अलग अवतार की उपासना कर सकते हैं, But with no material desire. लेकिन कोई भौतिक वासना के साथ नहीं। We don't think, oh, how much will you pay me? तो हम लोग ऐसा नहीं सोचते हैं कि भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, आप कितना पैसा हमें देंगे। And we don't think, oh, am I going to go back to Godhead? I hope I'm going to get liberation. I don't want to come back here. तो हम लोग ये भी चिंता नहीं करते हैं कि हम भगवत धाम जाएंगे कि नहीं, मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ। No, the body doesn't mind. We just want devotional service. भक्त उसके बारे में सोचता नहीं है, वो केवल भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। Right? Just let me do some seva somewhere. तो क्या हम किस प्रकार मैं कुछ सेवा कर सकता हूँ, किसी भी स्थान में क्यों ना हो। So that is the mood of the pure devotee. और यही शुद्ध भक्त की चेतना है। So Chaitanya Mahaprabhu is praying like that. He's teaching us how we should pray. तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर सिखा रहे हैं कि हमें किस प्रकार भक्ति करना चाहिए, किस प्रकार हमें क्या प्रार्थना करना चाहिए भगवान के पास। Yeah. Okay. ठीक है। Yes. More questions here? Or were there ladies' questions? Only men questions here? What's going on here? माता जियों के पास, माता जियों का कुंती महारानी का प्रार्थना है। ओके, गौतम प्रभु पहले हाथ उठाया था। गौतम प्रभु। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। Yes, question. हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। My question is getting the next life as a cow considered a rise or a downfall for a devotee? प्रश्न है प्रश्न है, अगर कोई भक्त अगले जीवन में गाभी का शरीर, गौ माता का शरीर प्राप्त करता है, गाय का शरीर प्राप्त करता है, क्या ये उनके लिए पतन है? Well, if you become a cow in Goloka, तो महाराज बोल रहे हैं कि अगर आप गोलोक वृंदावन में गाय बनते हैं तो it's not bad. तो वो कोई खराब नहीं, वो सर्वोपरि है। There are cows also in the heavenly planets, higher planets, you तो know. उच्च लोक में भी, जैसे स्वर्ग लोक में भी गाय है। There's a planet, Serapi cows. एक स्वर्गलोक में है एक स्थान है जहाँ पर सुरभि गाय रहा करती हैं। But generally devotees, you know, they just want devotional service. So Bhaktivinoda Thakur said, I don't even mind to be an insect so long as it's in the home of a devotee. तो साधारणतः जो भक्त है वो केवल भगवान की भक्ति और सेवा चाहते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि अगर कीटो जन्म हो यथा तथा तुआ दास, अगर कीट का जन्म भी हो फिर भी मैं आपका दास ही रहना चाहता हूँ। In the home of the devotee, they'll chant the holy name and there'll be crumbs of prasadam. I'll be able to eat some prasadam. और भक्तों के घर में मेरा जन्म हुआ और वहाँ पर भक्त लोग भोजन करेंगे और वहाँ पर मैं कीट के शरीर में भी भगवान की प्रसाद हमें मिलेगी। So if you're a cow in the family from devotee family, it's not so bad.
अगर आपको गाय का जन्म होता है किसी भक्त के परिवार में तो खराब नहीं है, अच्छा है, सब कुछ मिलेगा। But usually human life is there for the devotee. You've done somebody's done devotional service, they will get the human body at least in the next life. तो साधारणतः अगर कोई भक्ति करते हैं हाँ, तो उनको निम्न जोनि नहीं प्राप्त होता है, पशु के जोनि नहीं प्राप्त होगा, उनको कम से कम मनुष्य शरीर मिलेगा। Right? A little devotional service will save you from the greatest danger. The danger is that we lose the human life and we fall into the other forms of life. तो स्वल्पम अप्यस धर्मस्य त्रायते महतो मतलब भक्ति आपको कम से कम मनुष्य शरीर प्रदान करेगा और भय से रक्षा करेगा। भय क्या है कि मनुष्य शरीर नहीं मिलना। So devotee doesn't have to worry like that. तो भक्तों को उसका चिंता नहीं करना पड़ेगा। You get the opportunity to go on with his devotional service. तो भक्तों को फिर से मौका मिलेगा कि मनुष्य शरीर प्राप्त होगा और आप भक्ति करते रहेंगे। Krishna never says any devotee is going to become an animal. He said next life, he said if they've done even a little devotional service, they'll go to higher planets and they'll enjoy their material desires there, and then they'll come back to earth, they'll take birth in a wealthy family. तो अगर किसी का भक्ति असंपूर्ण रह जाता है तो स्वर्ग लोक में जाएगा और वहां पर वो कुछ समय तक वो अलग अलग भौतिक सुख का अनुभव करेंगे या उपभोग करेंगे और फिर से उनको इस पृथ्वी पर उनको किसी अच्छे कुल में उनका जन्म होगा जहां पर वो फिर से भक्ति कर सके। And if they're already very advanced but still not perfect, they take birth in the family of devotees, so that immediately from their birth they can be in devotional service. और दूसरे तौर अगर कोई व्यक्ति बहुत उच्च अवस्था में रहने के बाद भी उनकी भक्ति पूर्ण नहीं हो पाता है तो उनको अगले जीवन में दोबारा वैष्णव परिवार में जन्म होगा जहां पर वो भक्ति को पूर्ण कर सके अगले जीवन में ही। Of course, Bharat Maharaj was a special case. Bharat Maharaj had to take the body of a deer. हालांकि भरत महाराज का जो केस है वो थोड़ा सा अलग है। उनको हिरण का शरीर प्राप्त हुआ था। But in the body of the deer, he could remember his previous life. लेकिन हिरण के शरीर में भी वो भगवान की स्मरण कर पा रहे थे। So even in the body of the deer, he would go to places where the saintly people would live, and he would eat the remnants of their food. इस प्रकार हिरण के शरीर में रहते हुए भी वो वहां पर गए थे जहां पर साधु संत लोग उनकी साधना तपस्या कर रहे थे। And quickly he gave up the deer body. Next life he took birth in a Brahmana's family. और इस प्रकार बहुत जल्दी वो अपने हिरण का शरीर परित्याग किए और फिर से वापस उनको ब्राह्मण की शरीर प्राप्त हुआ जहां पर वो पुनराय अपना भक्ति को कंटिन्यू किए। So it was a very special case that he had to become an animal. तो ये बहुत ही विशेष घटना है जहां पर भरत महाराज को पशु का शरीर प्राप्त हुआ। ओके माता जी की तरफ से क्वेश्चन। पहले कौन हाथ उठाए? जो पहले हाथ उठाए हो माइक ऑन। Hare Krishna Maharaj, Pranam. Maharaj, we hear about humility so many times, but also we try to imply it, but after few days Maharaj, we kind of forget it and again the anger issues come. So Maharaj, is there any suggestion that how we can remember this quality of being humble throughout our life? तो माता जी का प्रश्न है कि हम लोग सुनते हैं कि हम विनम्र होना चाहिए, विनयी होना चाहिए और हम लोग इसको अपने जीवन में पालन करने के लिए भी प्रयास करते हैं, लेकिन देखा जाता है कि कुछ समय के बाद हम लोग उसको अपने जीवन में पकड़ के नहीं रख पाते हैं और हमारे हृदय में क्रोध, अलग अलग प्रकार के विचार उत्पन्न होता है। तो महाराज आपका कोई उपदेश
और निर्देशन है कि कैसे हम लोग पूरे जीवन भर हम लोग विनम्रता का पालन कर सके। Well, just by practice of devotional service, by the daily chanting of the Hare Krishna mantra, and by practicing the other regulated principles, worshipping Krishna and offering respects to the Vaishnavas, bowing before them, in this way, naturally, you will develop humility. तो महाराज कह रहे हैं कि भक्ति योग का पालन करने के द्वारा ही हम लोग इस अलग अलग गुणावली जो है उसको हम जागृत कर सकते हैं। अगर हम लोग नियमित रूप से हमारा हरिनाम का जप करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं और भगवान की आराधना, भगवान को प्रणाम निवेदन करते हैं और भगवान की सेवा और उनके जो भक्तों को हम लोग सेवा या सम्मान प्रदान करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो विनम्रता गुण ये प्रकट होता है। One who is a devotee of Krishna will gradually develop all the good qualities by constantly engaging in devotional service. तो जो भगवान के भक्त हैं, स्वाभाविक रूप से ही उनके हृदय में, उनके चरित्र में ये सारे सद्गुणावली का विकास होता है। So when you lose your temper and become angry, then you must make a point to go to the people you've got angry at and fall at their feet and ask them to forgive you and tell them, I'm very sorry, I'm not controlling my senses. तो जब भी इस प्रकार की परिस्थिति होती है कि जहाँ पर आप किसी व्यक्ति के प्रति क्रोध व्यक्त किया बिना कोई कारण है, बिना कोई दोष से, तो तब आपको ये विचार करना चाहिए कि मैंने गलत किया और फिर उनके पास जाना चाहिए और उनके पास जाके उनके चरणों पे गिर के हमें उनसे माफी मांगना चाहिए कि मैंने आपके प्रति क्रोध व्यक्त किया, हमें माफ करिए। Of course, sometimes you have to use anger in the service of Krishna. कभी कभी आप क्रोध का उपयोग कर सकते हैं अगर वो भगवान की सेवा के लिए हो, But you should not be controlled by the anger. लेकिन आप क्रोध के द्वारा नियंत्रित हो जाना नहीं चाहिए। If you are not the master of your own mind and senses, then you won't be able to use anger properly. अगर आप अपने मन और इंद्रियों का दास नहीं है तो आप क्रोध को सही प्रकार से उपयोग कर पाएंगे। So it's very important that you practice controlling your mind and senses. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग या आप अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण करने का प्रैक्टिस करें। And something upsets you and makes you angry, then you have to take shelter of the holy name. Take your big bag and go out of the house and go for a long walk and just chant the holy name until you calm down and get control of your mind. अगर कोई परिस्थिति होती है जहाँ पर आपके मन विचलित हो जाता है, बहुत क्रोध उत्पन्न होता है, तब आपको हरि नाम का आश्रय लेना चाहिए। आपको घर से निकल जाना चाहिए बाहर और थोड़ा वॉक करना चाहिए, जप करते रहना चाहिए जब तक आपके मन और क्रोध प्रशमित नहीं होता है। Okay. हरि बोल। लास्ट क्वेश्चन है। Hare Krishna Maharaj. Kunti Maharani had so much prayerful mood and grateful attitude towards Lord Krishna. How can we also develop that prayerful and gratefulness to Lord Krishna? हम लोग देखते कि कुंती महारानी का भाव किस प्रकार प्रार्थना और कृतज्ञता से पूर्ण है। तो महाराज कैसे हम लोग भी इस प्रकार भाव ग्रेटफुलनेस, कृतज्ञता भाव और प्रार्थना भाव भगवान श्री कृष्ण के प्रति जागृत कर सकते हैं? Well, we can develop that prayerful mood by hearing her prayers and by repeating her prayers. तो हम लोग इसको जागृत कर सकते हैं, प्रार्थना और कृतज्ञता कि कुंती महारानी की प्रार्थना को हम लोग श्रवण कर सकते हैं और उनको रिपीट कर सकते हैं भगवान के सामने। Just like chanting Hare Krishna mantra, that's also a prayer. जैसे chant the mantra in a prayerful mood. जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का जो कीर्तन या जप, ये भी एक प्रार्थना है और इसको हम लोग प्रार्थना पूर्ण भाव से कर सकते हैं। Mahaprabhu said, Kirtaniya Sada Hari. We should always chant the holy name.
तो महाप्रभु ने कहा कीर्तनीय सदाहरि, हमें हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। So we should constantly be praying to Krishna. तो हमें हमेशा भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए। So it said, Prabhupada writes, Nectar of Devotion, that one whose lips are always decorated with prayers to Lord Krishna is always given respect by great saintly persons, and such persons are worshipable by the demigods. One whose lips are always decorated with prayers to Lord Krishna is always given respect by saintly persons. तो जिन भक्तों के जीवा में भगवान के प्रति प्रशंसा और गुणगान से भरा हुआ रहता है, ऐसे व्यक्ति देवता के द्वारा हमेशा प्रशंसित और सम्मानित रहते हैं। And one who is constantly praying like that, he is worshipable by the demigods. और ऐसे व्यक्ति जो हमेशा भगवान के गुणगान में निमग्न रहते हैं, वो देवता के द्वारा पूज्य होते हैं। The demigods are sakama bhaktas. They have material desires. जो देवता जो है वो सकाम भक्त हैं, उनको भौतिक इच्छा है। But if one is constantly chanting the holy name with pure devotion, that is ananya bhakti. That is the real mood of devotion. तो लेकिन कोई व्यक्ति अगर निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन और जप कर रहे हैं, तो फिर वो अनन्य भक्त हो गया, वो शुद्ध भक्त है। Our whole day is prayer. We worship Tulsi, we pray, we do Guru Puja, we pray, we're offering Mangal Arti, we pray there. It's all prayers. We have so many prayers every day. तो हम लोग का जो पूरा दिन है वो प्रार्थना ही है। हम लोग तुलसी पूजा करते हैं, वहां पर हम लोग प्रार्थना करते हैं। हम लोग गुरु पूजा करते हैं, वहां पर हम लोग प्रार्थना करते हैं। हम लोग सुबह मंगल आरती करते हैं, वहां पर हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो पूरे दिन ही हम सबका प्रार्थना है। हरि बोल। And our prayer is, again, we just want devotional service. तो हमारा जो प्रार्थना है उसका भाव ये है कि हम लोग केवल शुद्ध भक्ति चाहते हैं। We don't want any material desire. We're not asking Krishna, oh, give me money, give me a long life, give me a house, give me a nice wife by the sea. Om Jai Jagadish Hari. तो हम लोगों का प्रार्थना इस प्रकार नहीं है कि हम लोगों को धन चाहिए, हमें बहुत सुंदर स्त्री चाहिए, हमें भौतिक सुख चाहिए, हाँ, जैसे लोग जय जगदीश हर बोल के करते हैं। Devotees, pure devotion. तो just want service. तो हम लोग शुद्ध भक्ति के जैसे प्रार्थना करना चाहिए कि केवल हमें भगवान के चरणों में अहित की सेवा चाहिए। We're getting so much pleasure, so much peace by worshiping the Lord. तो हम लोग बहुत आनंद और शांति प्राप्त करते हैं केवल भगवान की सेवा करते हुए ही। We don't want anything else. हम लोग दूसरा और कुछ नहीं चाहते हैं। Dhruva Maharaj went to the forest. He wanted a big kingdom. तो ध्रुव महाराज जंगल में गए थे और वो बहुत बड़ा राज्य प्राप्त करना चाहते थे। But when the Lord appeared to him, then he told the Lord, he said, no, I don't want anything. लेकिन जब वो भगवान का दर्शन प्राप्त किए तब उन्होंने कहा कि भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। Swami Kritatosmi Varam Nanayachi. He said, I'm fully satisfied. I've seen you. Now I'm fully satisfied. I don't need anything. तो स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न जाचे, हे स्वामी मैं संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया हूँ आपका दर्शन प्राप्त करके, हमें और कुछ नहीं चाहिए। I came here looking for broken glass. मैंने टूटा हुआ कांच ढूंढने के लिए आया था। And I found a beautiful jewel. और मैं दिव्य रत्न मेरे को प्राप्त हुआ। That is bhakti. और यही है भक्ति। Okay, Hare Krishna. रीवो रीवो रीवो। आप सबको अच्छा लग रहा है? तो महाराज यहाँ पर आए हैं हमें शुद्ध भक्ति देने के लिए। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। महाराज का दिव्य सान्निध्य प्राप्त हुआ, विशेष करके उनके आविर्भाव तिथि में। आ जाएंगे
You said that how Krishna protected Pandavas in all situations, and they are always surrendered to Krishna. So as a devotee, when we practice Krishna consciousness, so we face many times different difficulties, and in those difficulties, we see that our faith is not so strong, and we are feeling insecure. So my question is that how we can develop that shelter where we can feel complete security that Krishna is our only protector and we are safe. तो मेरा प्रश्न है कि आपने वर्णन किया किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण पांडवों को रक्षा किए, कुंती महारानी को रक्षा किए, और लोग हमेशा भगवान के शरण लिए थे। तो हमारे जीवन में बहुत बार अलग अलग प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होता है, जहाँ पर हम लोग असुरक्षित या भय का अनुभव करते हैं। तो महाराज, मेरा प्रश्न है कि कैसे हम लोग उस स्थिति को जागृत कर सके जहाँ पर हम लोग भगवान की निर्भयता से भगवान की शरण ले और हम लोग सुरक्षा का अनुभव करें। Yes, well, Krishna gives us these tests. It helps to strengthen our faith. The more you have difficulties, the more you will think of Krishna, and then we think of Krishna and we develop stronger faith. तो भगवान श्री कृष्ण अलग अलग प्रकार की कठिनाई उत्पन्न करते हैं कि जिसके द्वारा हम लोग उनका और शरण ले, और जितना हम लोग भगवान की शरण लेंगे उतना ही हमारा जो श्रद्धा है वो और दृढ़ होगा। And Queen Kunti prays like that. Vipadashantutasasvat tantra tatra jagat guru. She's saying, let all these vipada, all these calamities happen again and again. तो कुंती महारानी इसी प्रकार प्रार्थना कर रही है कि हे कृष्णा, विपद और मेरे जीवन में आए, और जब विपद मेरे जीवन में आएगा तो मैं आपकी स्मरण करूंगी। You know, we pray, oh, don't give me any troubles, oh, don't give me any problems. But Kunti said, let them, I want more problems, because then it makes me stronger. तो कुंती महारानी यहाँ पर दूसरा प्रार्थना कर रही हैं। कुंती महारानी कह रही हैं कि भगवान और विपद आए हमारे जीवन में, क्योंकि जब विपद आती है मेरे जीवन में तब मेरा भक्ति और दृढ़ होता है। Here's the verse, you see. I wish all these calamities, vipadashantatasvat tatra tatra jagadguru bhavato darshanam yachyat apunar bhavadarshanam. The more there are calamities, the more we will think of Krishna, and by thinking of Krishna, no more birth and death. जितना कठिनाई आएगा उतना हम लोग कृष्ण का स्मरण करेंगे, और जितना कृष्ण का स्मरण करेंगे उतना ही हम लोग जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर चले जाएंगे। हरि बोल। Okay, so we'll have more questions another night. Yes. So हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, तो हमें महाराज इतना समय दिए। आप सबको अच्छा लगा? और वो भी महाराज के आविर्भाव तिथि में, तो हमें और एक दिन महाराज का संग मिलेगा। तो कल शाम को फिर से महाराज यहाँ पर आएंगे, और जो क्वेश्चन है आप लोग नोट डाउन करके, क्या कहते हैं, आप थोड़ा चीट बना के नोट बना के रखिए, तो पहले क्वेश्चन नेक्स्ट दिन आप लोगों का लिया जाएगा। ठीक है? तो हम लोग महाराज को धन्यवाद देंगे यहाँ पर आने के लिए, कृतज्ञता व्यक्त करेंगे महाराज के चरणों में। तीन बार हरि बोल बोलकर हरि बोल। इस होलीनेस भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह स्वामी महाराज की, Srila Prabhupada ki. हरे कृष्णा। तो आप लोग अगर महाराज को कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं तो यहाँ पर सूरज राय प्रभु है, सूरज राय प्रभु को दे सकते हैं। तो